A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the various types of the ratios like a liquidity ratio, activity ratio, solvency ratio, and profitability ratio. As well as we discussed the various tools and techniques by which we discussed a lots of techniques like a comparative statement and common size statement. Comparative statement includes the two statements, that is a comparative statement of PL and comparative balance sheet. Whereas the common size statement include the two statements, that is an common size statement of PL and common size balance sheet. So in this video, from the for the revision test 2 point of view, we discuss the concept of ratio, what is the meaning of the ratios, as well as how many types of the ratio, ताकि आपको और इजी क्लियर हो जाए कि कौन सा रेशियो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, because you know very well there are basically four main types of the ratios. So most of the students have a doubt about it कि कौन सा रेशियो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस में आएगा. सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द profitability ratio. So for the clarification and revision point of view, in this video, firstly we discuss the classification of the ratios and we discuss the various formula related to the liquidity ratio, which include the current ratio and quick ratio. Okay, so before starting the today's topic, that is in classification of ratio, first of all we discussed the tools for financial statement analysis. Basically आपके कोर्स में there are basically three tools are included in your syllabus, that is an comparative statement, second will be a common size statement, and third will be a trend percentage. ओके, सो ट्रेंड परसेंटेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल calculate the trend percentage with the help of the given data, as well as in the next video we will discuss a lots of the practical problem, miscellaneous problem from your doubt session. So first of all हम comparative statement and common size statement के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Comparative statement include the two statement, that is in comparative statement of profit and loss, as well as comparative balance sheet. Okay, and common size statement also classified into the two statements, that is in common size statement of PL as well as common size balance sheet. Okay, and ट्रेंड परसेंटेज पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही. And you know very well, in the comparative statement and comparative statement of PL and comparative statement, we find out the absolute change. Absolute change equals to the previous year figures minus current year figure. Whereas in common size statement, when we prepare the common size statement of PL, we take a common, that is revenue from operation, and in the common size balance sheet we take the common, that is an total of balance sheet, whether it is a liability side or asset side. Okay, so all the things, I hope it is clear for you. And now in short way
Please note down the definition of the ratio. So what is the meaning of ratio? You know very well. Ratio is a mathematical expression by which we establish the relation between the two variables, and there are various ways by which we can present the ratios or express the ratios, like a simple ratio, okay, like a simple ratio, and रेशियो कितने तरह से प्रेजेंट किया जाता है तो उसको लिख लो. Ratio can be presented by of the following way, that is a simple ratio. Simple ratio means x is to y. Second is a percentage ratio, like a 60%, 40% ratios. दो वेरिएबल के बीच में कैसा परसेंटेज है, 50% है, 50% और 40% का रेशियो है. As well as the number third will be a time ratio. Time ratio will be a known as the 3 times or 4 times, 6 times, and fraction ratio. Fraction ratio पार्टनरशिप में आप लोग जानते होंगे, 1/3, 2/3 और तीन वेरिएबल के बीच में शो करना हो तो वी कैन से दैट 3/5, 1/5 एंड 1/5. सो बेसिकली रेशियो का यूज होता है दो वेरिएबल्स के बीच में. इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाय विच वी शोज द रिलेशनशिप between two variables. Okay, so now we will move to the next topic, that is in classification of the ratio, जो आज हमारे वीडियोस का मेन टॉपिक है. Okay, before starting the today's topic, that is in classification of the ratio, एक छोटा सा टॉपिक और बताना आपको भूल गया था मैं, that is in टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कितने तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं. सो यू नो वेरी वेल, इसको भी मैं रिवाइज करा देता हूं. दैट इज इंटर फॉर्म एनालिसिस, इंटर फॉर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस. ओके, इन द इंटर फॉर्म एनालिसिस we compared the two companies. इंटरफॉर्म एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग कंपनीज के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे एक्स कंपनी का वाई कंपनी के साथ कंपेयर किया, सो इट विल बी नोन एज एन इंटरफॉर्म एनालिसिस. व्हेन द एनालिसिस इज वेयर टू प्लेस between the two different companies, it will be known as an interfirm analysis. And intrafirm analysis, company will be same but the period is different by which we establish the relationship. Like X company का ही हम 2019-20 और 2020 और 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे, सो इट विल बी नोन एज एन इंट्राफॉर्म एनालिसिस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इंटरफॉर्म एनालिसिस मींस comparison between the two companies, two different companies, whereas an intraform analysis means the comparison between the two different period of the single company. Okay, now we are moving to the next topic, that is in classification of ratios. जिसके लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी. Classification of accounting ratio. So if we are talking about this chapter, how many types of the accounting ratio from the numerical point of view? So there are basically four types of the accounting ratio. The four types of the accounting ratio. The first type of the accounting ratio is liquidity ratio. Liquidity ratio. The second type of the accounting ratio is solvency ratio. The third type of the accounting ratio will be activity ratio. Okay, the third one is a activity ratio.
And the fourth and last type of the accounting ratio will be a profitability ratio. So there are basically four types of the ratio in your course: liquidity, solvency, activity, and profitability. Liquidity ratio is a ratio which brings out the ability of the firm to honor its short term obligation. यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द लिक्विडिटी रेशियो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको कंपनी पे करने के लिए कितना कैपेबल है, यानी लिक्विडिटी रेशियो विच आर रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लोन को कैपेबल पे करने के लिए कितनी कैपेबल है. विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो, with the help of the solvency ratio, company can check its ability to meet long term liabilities, to meet long term liability. यानी इससे हम ये पता करते हैं इस रेशियो से कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितना कैपेबल है. विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी रेशियो we used to या we analyze the, कह सकते हो, the different elements of the assets, different elements of the assets and their efficiency. So with the help of the activity ratio, company can analyze the different items of assets which are financed through long term funds, long term source of finance या long term funds. यानी बेसिकली जो आपका एक्टिविटी रेशियो होता है ये इस बात को एनालाइज करने के लिए कैपेबल होता है कि जो आपके डिफरेंट एसेट्स हैं, जो डिफरेंट एसेट्स हैं वो अपने जिस लॉन्ग टर्म फंड से क्रिएट हुए हैं उसका कैपेबिलिटी कितनी है. यानी यू नो वेरी वेल, जब कंपनी कोई भी लोन लेती है तो उस लोन से क्या करती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस करती है, और फंड जो होते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स को स्टैब्लिश करती है. तो एक्टिविटी रेशियो हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से किस तरह से कह सकते हो सिक्योर्ड है, कितनी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कितनी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स है. उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म एसेट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं. लाइक एसेट्स में हम ट्रेड रिसीवेबल्स को ले लें, ट्रेड पेबल्स को ले लें, हम ले लें स्टॉक को ले लें, इन्वेंट्रीज को ले लें. तो ये सारे डिफरेंट आइटम, फिक्स एसेट्स को ले लें, डिफरेंट आइटम्स के हम लोग रेशियो स्टैब्लिश करते हैं, उनके कह सकते हो उनके रिलेशन को चेक करते हैं. The fourth type of the ratio is profitability ratio. Profitability ratio is the ratio which is also known as the income ratio. With the help of the profitability ratio, company can analyze its ability of profit. यानी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी प्रॉफिट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि कंपनी अपना सुटेबल प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं कर रही. उसकी प्रॉफिट का रिलेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ चेक किया जाता है, लाइक अ सेल्स. And you know very well, there are basically few types of the profit: gross profit, net profit, operating profit, और प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो बेसिकली कई तरह की प्रॉफिट्स होती हैं, कई तरह का रिटर्न होता है. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड different elements of the profits as well as the revenue from the operation. So any doubt? So if we are talking about the types of the different ratios, so you can see that there are basically four types of the accounting ratio. The first one is a
profit. The first one is a liquidity, second one is a solvency, third one is a activity and fourth one is a profitability. So उसमें कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि आपको कितने रेशियो पढ़ने आपको पढ़ने हैं लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो. द फर्स्ट वन इज अ करंट रेशियो और दूसरा रेशियो आपको पढ़ना है दैट इज क्विक रेशियो. सो बेसिकली आपको लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो पढ़ने हैं. खुश हो गए होगे सर बस दो ही रेशियो पढ़ने हैं? यस, सिर्फ दो रेशियो पढ़ने हैं, कोई बात नहीं. सॉल्वेंसी रेशियो में आपको टोटल 4 रेशियोज पढ़ने और सबके फॉर्मूलाज हैं, सबके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. ये है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी में, ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा. डेब्ट इक्विटी रेशियो. दूसरा रेशियो आपको पढ़ना है दैट इज अ डेब्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. थर्ड आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, दैट इज डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो. टोटल फंड रेशियो. फोर्थ में पढ़ना है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो. ओके, सो आपको सॉल्वेंसी रेशियो में मेनली 4 रेशियोज पढ़ने. अब हम लोग बात करें एक्टिविटी में सर कितने रेशियो पढ़ने हैं, तो एक्टिविटी में बहुत रेशियो पढ़ने हैं. टोटल 6 रेशियोज आपको पढ़ने हैं एक्टिविटी में. तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, शॉर्ट में नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग बुक में पूरे नाम लिख लेना उसके. एक्टिविटी में आपको पढ़ना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. द फर्स्ट वन इज अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सेकेंड वन इज अ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. सो जो टीआर का मतलब है वो है टर्नओवर रेशियो. आई फॉर इन्वेंट्री, टीआर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. उसके बाद पढ़ना है आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है उसी तरह से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है. फोर्थ टाइप का पढ़ना है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल, यू नो वेरी वेल व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो उसी तरह से आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ना है. और पढ़ना है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो. एंड नंबर 6 इज करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. So under the activity ratio you have to study, you will be the study about the different types of the activity ratio or turnover ratio. Activity ratio is also known as the turnover ratio which include the inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, fixed assets turnover ratio, working capital turnover ratio and current asset turnover ratio. And at last प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी आपको डिफरेंट रेशियो पढ़ने हैं और ये अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है आपके कोर्स में लगभग 7-8 रेशियोज आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के. पहला रेशियो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. मैंने आपको बताया था ना कई तरह के प्रॉफिट्स होती हैं, तो उसी के बेसिस पे आपके डिफरेंट रेशियो भी स्टैब्लिश होते हैं. द फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सेकेंड इज अ नेट प्रॉफिट रेशियो. थर्ड वन इज अ ऑपरेटिंग profit ratio. Fourth one is a operating ratio. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में डिफरेंट होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है. और नेक्स्ट आपका आता है इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. और भी बहुत छोटे छोटे रेशियोज हैं जो टाइम टाइम पे आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, बट बेसिकली आपको इतने रेशियो मिनिमम पढ़ने हैं जो आप अपने बुक में अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिख लीजिए कि आपको टोटलिटी में 4 बेसिक रेशियोज हैं अकाउंटिंग के. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, एक्टिविटी को कहते हैं टर्नओवर रेशियो भी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो.
लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी में 4, डेब्ट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, डेब्ट टू टोटल फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड एक्टिविटी रेशियो पे इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर रेशियोज पढ़ने हैं। सॉरी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपको टोटल 5 मेन रेशियोज पढ़ने हैं। वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपरली वे में 1 बाय 1 पढ़नी है। तो अगर हम पूरा कंबाइन करें, यानी कह सकते हो कि मेनली 4 रेशियोज हैं और चारों रेशियोज को अगर एक्यूमुलेट कर दें तो टोटल आपको 2, 4 हो गया 6, 6 12, 12 एंड 5 टोटल 17 रेशियो आपको मेनली पढ़ने हैं। 17 रेशियोज के आपके फॉर्मूलेज आपको मुंह पे याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। और इनके कुछ सब रेशियोज हैं। जैसे कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछूं तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस का भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड दिस। सो यू कैन सी दैट ये 17 जो रेशियो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव रेशियोज हैं, जो बड़े जो कॉमन रेशियोज हैं, जो मेन रेशियोज हैं। इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें और भी कई तरह के सब्सिडीज फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ता है। यानी आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमें 17 रेशियो पढ़ने हैं, 17 रेशियो के फॉर्मूले याद करने, नहीं। 17 रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट अदर टाइप्स के भी फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे जो उस रेशियो को कैलकुलेट करने में मेरी हेल्प करेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज को याद करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये लेके नहीं सोचना है, ये लेके नहीं चलना है कि सर हमें सिर्फ इतने ही रेशियोज पढ़ने, नहीं। आपको टोटल में 17 मिनिमम पढ़ने हैं और उसको याद करने के लिए आपको कई तरह के फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। सो दिस इज अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो हम 1 बाय 1 एक एक रेशियोज को उठाएंगे। जैसे हम पहले लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, फिर हम सॉल्वेंसी पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ेंगे। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा। So our first ratio is liquidity ratio. So what is liquidity ratio? First of all, please note down in your copy. So liquidity ratio are the ratios which helps to bring out the ability of firm to honor its short term obligation। यानी लिक्विडिटी रेशियो ये हमें बताता है बेसिकली कि कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को कंप्लीट करने के लिए, पे करने के लिए कितना कैपेबल है। सो लिक्विडिटी रेशियो में हम ये भी पता कर ले कि लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। सो पहला रेशियो आता है लिक्विडिटी रेशियो में, वो होता है करंट रेशियो। सो बेसिकली करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है current ratio equals to current assets divided by current liability। What is the formula of current ratio? Current ratio equals to current assets divided by current liability। और ये रेशियो हमेशा सिंपल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, x is to y। इसमें एक्सप्रेस करेंगे, आप इसको कभी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ना इसको आप कभी टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। करंट रेशियो या कह सकते हो लिक्विडिटी रेशियो हमेशा सिंपल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 2:1, 1:1 इसी में एक्सप्रेस किया जाता है। So what is the formula of current ratio? Current ratio equals to current asset divided by current liability and this ratio expressed in the simple proportion। जैसे इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रेशियोज को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आप कहोगे सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? तो ये बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एनी एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट जो 1 साल में किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैश में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं?
सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, और क्या आता है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और क्या आती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या आता है आपका, और आता है आपका स्टॉक, स्टॉक में आप लोग इन्वेंट्री भी कह लो, इन्वेंट्री, और क्या आता है, यस एक्रूड इनकम, एनी इनकम विच इज earned but not received. So these are the basic example of current assets. ओके अब आपके मन में आ रहा होगा सर करंट लाइबिलिटी के भी आइटम्स बता दो, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है मैं बता देता हूं, मैं एक ही बार बताता हूं उसके बाद आपको बताना होता है, तो आप याद कर लेना करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन से आइटम आते हैं। जस्ट अपोजिट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का अपोजिट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, मैं पूरा लिख दे रहा हूं नहीं तो फिर कहोगे ओवरड्राफ्ट। ट्रेड रिसीवेबल का अपोजिट क्या होता है सर, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। प्रीपेड का अपोजिट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सब मैंने 11th में आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक्रूड इनकम का अपोजिट क्या होता है, एक्रूड इनकम का अपोजिट होता है एडवांस इनकम, यानी कोई इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई होगी, एडवांस इनकम। और कुछ चीजें बच गई, यस, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज आल्सो करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है, प्रपोज डिविडेंड। अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है तो उसको भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। और क्या क्या चीजें होंगी सर इसमें, इसमें और आएगा लोन पेबल दिस ईयर, कह सकते हो इस साल जो भी आपको लोन पे करना है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। द नेक्स्ट रेशियो विल बी द लिक्विड क्विक रेशियो। अब देखिए क्विक रेशियो को हम लोग कई नाम से जानते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो को हम कितने नाम से जानते हैं, बहुत नामों से जानते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। सो पहले तो हम लोग ये जान लें क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यानी यहां पर अभी तक क्या था करंट रेशियो में, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्या हो गया, क्विक रेशियो में फॉर्मूला चेंज हो गया, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और इस रेशियो को भी हम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्विक रेशियो का और क्या नाम होता है, क्विक रेशियो का बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे एसिड टेस्ट रेशियो। एग्जाम में कोई और नाम पूछ देगा तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। एसिड टेस्ट रेशियो नाम होता है, और नाम होता है लिक्विड रेशियो भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो दिस इज अदर नेम ऑफ द क्विक रेशियो, ये कुछ बातें अपने दिमाग में रख लो। और सर इसमें करंट लायबिलिटी की मीनिंग सेम है, हाँ करंट लायबिलिटी का आइटम्स वही सेम है, चेंजेस कहां होंगी सर, लिक्विड एसेट्स क्या होता है ये बताइए। क्योंकि हम ये जानते हैं करंट एसेट्स क्या होता है, ये लिक्विड एसेट्स पहली बार सुन रहे हैं। बेसिकली लिक्विड एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हाईली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो जाती है। इससे भी ज्यादा लिक्विड होती है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, वो अलग बात होती है, वो तो इतनी वो विच आर इक्विवेलेंट टू द कैश इन कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड रेशियो का मतलब है जो ऑन डिमांड कैश में कन्वर्ट हो जाए। और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होगा, जो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, बस मेरे जेब में है, मुझे उठाना है। तो लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं उसको नोट डाउन कर लो।
liquid assets equals to current assets minus closing stock, that is inventory, minus प्रीपेड एक्सपेंस। यानी जब आप करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक को यानी इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हो तो ये आ जाता है लिक्विड एसेट्स। यानी कि ऑल द करंट एसेट्स which are not included the inventories, which are not included the prepaid expense, these will be known as the लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं, इसलिए इस पे भी मत कंफ्यूज होना कि सर ये क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस है। So basically, what is the formula of quick ratio? Quick ratio equals to liquid assets divided by current liability. The quick ratio is also known as the acid test ratio or liquid ratio. Liquid ratio is also known as the quick assets. Quick assets equals to or liquid assets equals to current assets minus closing stock minus prepaid expense. And what is the explanation of current liability? The explanation of current liability is same as which are adopted in the current ratio. So I hope today we cleared all the topic very easily. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. And if you have any doubt, so please